Good morning to students of class 9. Welcome to all of you in physics class once again. And today we will discuss about Newton's second law of motion. Okay, our chapter is already force and laws of motion. Okay, and Newton's second law we have to discuss today about Newton's second law of motion. And so we will consider about a situation to find the expression of second law of motion. Okay, by the second law of motion we have to find the expression for force. Okay, and so and the relation between force and acceleration will also be find out by this second law of motion. Okay, here is the chapter is given, here is the topic is given. The Newton's second law of motion is our topic, and Newton's statement is given that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. Newton states that momentum of the body, as we know that in the previous chapters and previous videos we had already discussed about momentum. Momentum is the product of mass and velocity of the body. Okay, and so here it states that the rate of change of momentum of the body is directly proportional to applied force. Okay, a rate of change of momentum is directly proportional to applied force. That means that if force will increase, then change in momentum also increases. If force will decrease, the change in momentum is also decreases. And now according to second law of motion, this is the expression: force equal to change in momentum by time taken. We have to discuss, we have to prove by an expression, by an example, and so we will I would like to explain you with an example. Consider a body of mass m. Okay, a body having mass m. Okay, and its initial velocity, that is starting velocity, is u. Okay, the initial momentum will be, according to the definition of momentum, momentum is the product of mass and velocity. Okay, here is the m into u, that means product of mass and initial velocity u. Okay, and now suppose a force F acts on this body for the time t. As well as the force acts on the body, then its velocity also changes, and so its final velocity becomes v, and so the final momentum will be mv, mass into final velocity mv. Okay, now the changes of momentum will be final momentum minus initial momentum, and so mv minus mu. Okay, and the time taken for this change is t. The time taken for this change is given t. Okay, according to Newton's second law of motion, this is the expression: force is directly, this is the sign of directly proportional to mv minus mu, that is rate of change of momentum. Rate, it means this is the time. Okay, and so here is the next step. We take that, we have to use that this m is the common between the two, and m is the outside, and m is the outside, and v minus u by t. And as the definition or expression or formula of acceleration is equal to a small a equal to v minus u by t, and so we will use in place of v minus u by t as a, and so f is directly proportional to mass and acceleration. Okay, this expression shows that, states that force acting on a body is directly proportional to the product of mass and acceleration of the body. Okay, and now the we have to change this sign of proportionality, and so it will convert into equal sign, and so f equal to kma. K is the constant. Okay, when we change the proportionality sign, then we have to use a constant. This k is the constant, and so f equal to k into m into a. K is constant is given. If suppose that k is equal to 1, as we know that the SI unit of this constant is also 1, and so the expression will be f equal to m into a. 1 is cancelled, k is cancelled, and so f equal to m into a. That means acceleration, that is the force is equal to mass and acceleration of the body. This is the expression, this is the formula for numerical expression, and we will use
always use the formula this for numerical expression, and so F equal to m into a, that is force is equal to product of mass and acceleration of the body. Now from this expression, if we have to find out the value of a, then a is eliminated and a is equal to F by m, and so that means that statement is here that acceleration is directly proportional to force acting on the body, and acceleration is inversely proportional to product that is mass of the body. As acceleration will increases, then force acting on the body is also increases, and as acceleration will decreases, and the force acting on the body is also decreases, and by the relation of m mass, if the acceleration of the body increases, then mass of the body will decreases because it is inversely proportional, and so this the acceleration produced in a body is directly proportional to force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. Okay, this is the expression, and now we have to find out the SI unit, international system of unit of force is Newton. Okay, Newton in short we will write that capital N, and now the definition of this Newton, that is 1 Newton or a Newton, is the statement. We have to use the statement this one. This is the definition of 1 Newton. Okay, a Newton is or 1 Newton. Okay, there is 1 Newton is that force which when acting on body of mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square in it. दिस इज डिटेल्स ऑफ दिस सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब मैं फिर से एक बार आप सबका वेलकम है, और मैं एक बार फिर समझा देता हूँ दूसरी बार. और ये सेकंड चैप्टर आपका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन के हमने बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में कि न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, वो सेकंड लॉ हम लोग आज एक्सप्रेस करेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, और गौर से ध्यान से इसको वॉच कीजिएगा, और वॉच करके आप अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाइएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा. और मैं समझता हूँ इसे 2-3 बार वॉच कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्रेशन, एग्जामिनेशन में भी इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन व्यू के लिए, और इस कारण से इसे आप गौर से देखिए तो समझ में आएगा अच्छी तरह. तो हम लोग समझे आगे. लेटेस्ट ऑन द वाइट बोर्ड, लेटेस्ट कम ऑन द वाइट बोर्ड. ये कह रहा है न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये. न्यूटन ने 3 लॉ दी, उसमें सेकंड लॉ कह रहा है क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को. ठीक है, एम यू या एम भी होगा तो कहेंगे उसको मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. कह रहा है कि यहाँ पे कि किसी बॉडी पर किसी वस्तु पे जो बल लगाते हैं उसके कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के वो दैट इज समानुपाती कहते हैं उसको हम लोग, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. किसी वस्तु पे जो फोर्स लगाते हैं तो उस मोमेंटम जब चेंज होता है तो जिस तरह से मोमेंटम चेंज होगा उस तरह से फोर्स भी चेंज होता है. मतलब फोर्स बदलेगा, बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा, बदलेगा. आप फिर फोर्स यदि घटेगा तो मोमेंटम चेंज में भी बदलाव आएगा. ठीक है, और इस तरह से एक्सप्रेशन इसका है हमारा फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. अब इसे हम लोग एक्सप्रेशन के रूप में लाएंगे, एक सिद्धांत के रूप में, एक फार्मूला के रूप में लाएंगे. उसके लिए हम एक सिचुएशन पर कंसीडर करते हैं, विचार करते हैं. तो देखिए, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास. एक वस्तु है जिसका मास है m. आप जानते हैं मास का डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इट्स मास. तो किसी वस्तु का मास m है और हैविंग, अब वो चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, स्मॉल u लिखा हुआ है यहाँ पे. द इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो जाएगा तो आप डेफिनेशन से पता चल गया आपको कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम आएगा m इंटू यू, यू इनिशियल वेलोसिटी इसलिए m इंटू यू, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी हो गया इसका. अब सपोज मान लिया क्या कि उस पर एक फोर्स एक्ट किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया किसी वस्तु पे, और कुछ समय तक लगा, कितने समय तक, t समय तक फोर्स अप्लाई किया. जैसे ही फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो उसके मोमेंटम में, उसके वेलोसिटी में बदलाव आएगा. वेलोसिटी जो पहले u था वो चेंज होकर के v हो जाएगा, और तब मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. कह सकते हैं हम लोग द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी mv, मास एंड फाइनल वेलोसिटी. ओके, नाउ चेंज इन मोमेंटम जब होगा तो क्या करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम, पहले जो बाद का मोमेंटम एम बी था और पहले था एम यू, घटाएंगे, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा. एंड टाइम, उसके लिए उतने समय, कुछ समय लगा होगा जरूर मोमेंटम के चेंज होने में.
तो ये हमारा टी समय लगा। अब ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार, उसका जो एक्सप्रेशन के अनुसार, लॉ के अनुसार हम कह रहे हैं इसको एक्सप्रेस करेंगे। इफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, ठीक है, इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, ये चेंज इन मोमेंटम है बाई टाइम, रेट है इसलिए टाइम यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए एम एम दोनों में कॉमन है, एम बाहर आएगा, एम भी माइनस यू बाई टी। अब देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन में कि एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पहले प्रीवियस बहुत पहले वीडियोज में, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या एक्सप्रेशन जो हम लोग किए थे उसमें भी इसको देख सकते हैं। एक्सेलेरेशन का जो एक्सप्रेशन होता है एक्सेलेरेशन का वही होता है। तो एक के जगह भी माइनस यू बाई टी, अर्थात भी माइनस यू बाई टी के जगह पे हम ए का स्मॉल ए यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एम और ये पूरे के बदले में ए आ जाएगा, स्मॉल ए। तो आप कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी वस्तु पे जो फोर्स लगता है तो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन। मास होता है और एक्सेलरेशन दोनों के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब क्या कि फोर्स जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन दोनों बढ़ेगा, फोर्स जब घटेगा प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन दोनों घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटी, दोनों तरफ क्वांटिटीज बढ़ते हैं एक साथ घटते भी हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए अभी हमने यहाँ यूज किया है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एफ इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए हैं हम लोग, उसके बदले में कन्वर्ट किया हम लोग इक्वल साइन में। तो ये कांस्टेंट हमने यूज करना पड़ता है, तो ये इसको हटा करके कांस्टेंट के यूज किया हम लोग, एफ इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। ओके, अब के को मान लिया हमने ए वन, ऐसे भी जान लीजिए कि ऐसा यूनिट होता है कांस्टेंट टर्म का 1 होता है। तो ये 1 जब यूज करेंगे तो एफ इक्वल टू एम ए बचेगा, इसलिए एफ इक्वल टू एम ए हम लिख दिए। और ये देखिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्चुअल वास्तविक इसका जो एक्सप्रेशन बना हमारा। यदि हम ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन से तो कह सकते हैं ए इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या एक निष्कर्ष निकलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन है वो किसी फोर्स जब लगाते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, उसके समानुपात होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ता है, एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। लेकिन एम के साथ कुछ दूसरा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ होता है। कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो ये मास उसका घटेगा, और मास जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन इसका घटेगा, मतलब दोनों वाइस वर्सा अपोजिट होता है। तो ये देखिए इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स का न्यूटन होता है। न्यूटन साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसके नाम से रखा गया। शॉर्ट में से हम कैपिटल एन से भी कहते लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए डेफिनेशन यहाँ निकला न्यूटन या 1 न्यूटन का डेफिनेशन जब देंगे आप कह सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन द बॉडी, जब हम किसी 1 किलोग्राम फोर्स मास पर को यदि फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है, त्वरण पैदा होता है, कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे त्वरण इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उससे हम 1 न्यूटन कहते हैं। फिर से जान लीजिए एक बार, 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है व्हेन एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी वस्तु पे जब बल लगाते हैं, कितना 1 किलोग्राम वजन की वस्तु पे, मास के वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो उसके एक्सेलरेशन में 1 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो ये हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। और ये न्यूटन का ये हमारा डिटेल्स है सारा कुछ। और फिर आगे हम लोग नए वीडियोस में आएंगे। और बिल्कुल मैं एक आग्रह रिक्वेस्ट है आपका, अच्छी तरह से आप इसको वॉच कीजिए और कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे आप सारे लोग। थैंक यू वंस अगेन, एक बार फिर से एक बार आप सबका गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।